میں آج کا جو اقدام ہے اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، لیکن اسی بات کا سمجھ نہیں آتی کہ ہر الیکشن سے پہلے کا وہ عام انتخابات ہوں، ضمنی الیکشن ہو، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو ہی گرفتار کیا جاتا ہے اور یہ فرض نیب بخوبی انجام دیتی ہے۔ میں حکومت میں بیٹھے لوگ جو بھی کنٹینر کلچر سے باہر نہیں نکلے ان کی زبان میں گفتگو نہیں کروں گا، نہ کبھی کی ہے، نہ یہ مسلم لیگ نون کا شیوا ہے۔ چند گزارشات پاکستانی قوم سے کرنا چاہوں گا۔ جس کیس میں محمد شہباز شریف کو گرفتار کیا گیا ہے کہ جی آپ نے اس ٹھیکیدار کا ٹھیکہ کینسل کر دیا، اب پاکستانی قوم نوٹ فرمائے کہ یہ وہ ٹھیکیدار ہے جس کا نام چودھری لطیف ہے۔ اورنج لائن کے کیس میں خرد برد کی اور نیب نے نوٹس لیا، اس کے بعد سرگودا میں ایک منصوبہ تھا، اس میں خرد برد ہوئی، الزامات ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیب کی پلی بارگین کی جو رقم ہوتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ رقم دے کر اس نے پلی بارگین کر کے اپنی جان چھڑائی۔ اور یہ بھی پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد شہباز شریف نے یہ ٹھیکہ کینسل نہیں کیا تھا، پی ایل ڈی سی جو کمپنی ہے جس کا اپنا بورڈ ہے، اپنے ڈائریکٹرز ہیں، ان کی فائنڈنگز کے اوپر یہ ٹھیکہ جو ہے وہ کینسل کیا گیا۔ اور یہ بتاتا چلوں پاکستانی قوم کو کہ یہ چودھری لطیف ملزم تھا، نیب سے پلی بارگین کر کر جان چھڑائی، اور اینٹی کرپشن کے کیس میں ایک مفرور ہے۔ کیا ہے؟ مفرور ہے۔ اس کو پشاور میں بی آر ٹی کا، پشاور میٹرو بس کا ٹھیکہ دے دیا گیا نیازی صاحب کے دور میں، اور آج بھی وہ نیب میں پیش ہوتا ہے، مفرور ہے، پلی بارگین کی ہے، کوئی گرفتار نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ نندی پور میں جو بابر امان صاحب ہیں وہ کل تک مشیر تھے نیازی صاحب کے، سپریم کورٹ نے کہا کہ نندی پور میں کروڑوں کا خرد برد ہے، اربوں کا خرد برد ہے، اس کے خلاف انکوائری کی جائے۔ آج تک کسی کو ضرورت نہیں ہوئی نیازی صاحب کہ وہ اس کو گرفتار کیا جائے۔ اور قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہیلی کاپٹر ریفرنس میں نیازی صاحب آپ کو بھی نیب بلاتی ہے، عمران نیازی صاحب آپ نے بھی ہیلی کاپٹر کا مس یوز کیا ہے، اور آپ جب جعلی مینڈیٹ لے کر وزیر اعظم کے منصب پر بیٹھے تو چند دن بعد نیب چیئرمین سے آپ ملاقات کرتے، اور قوم دیکھتی کہ جس کو اپنا جو ہے ایک ریفرنس میں نیب کہتی کہ آؤ تم نے اپنا جو ہے مس یوز آف ہیلی کاپٹر کیا ہے، سرکاری ہیلی کاپٹر کا غلط استعمال کیا ہے، اپنا آ کے جواب دو، وزیر اعظم بن کر آپ نیب چیئرمین سے میٹنگ کرتے۔ اور آج ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے پنجاب اسمبلی میں نیب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے قرارداد جمع کرا دی، اور انفارمیشن منسٹر فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ابھی اور بھی بڑی گرفتاریاں ہونی۔ گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں ہمارے لیے نئی نہیں ہیں، پاکستانی قوم جانتی ہے کہ
नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने 10 साल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी कौम को मैं मुखातिब करके कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अकेला था और 10 साल शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के एहतसाब के नाम पर मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। रोज़, अब तो ये पेशियाँ होती हैं ना, उस वक़्त 10 साल में रोज़ 6-6 घंटे नायब के दफ्तर के बाहर बैठता था। और एक दिन मुशर्रफ के अपॉइंटेड नायब चेयरमैन ने मुझे दफ्तर के अंदर बुलाया। मैंने कहा आप मुझे 10 साल 6-6 घंटे चपरासियों की तरह बाहर बैठाते थे और मुझे लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी, लोगों को तो ECL पर डाला जाता है, तो आज मुझे आपने अंदर बुलाया। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब ने मुझ पर बड़ा दबाव डाला, लेकिन आज हमजा मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ हमने फाइलें खंगाल ली, लेकिन एक पाई की करप्शन हम साबित नहीं कर सके। अपने बुजुर्गों को आज बता देना। तो इमरान न्याजी साहब, उस दौर में आप मुशर्रफ की गोद में बैठा करते थे और अपना जो है रेफरेंडम के दाई बना करते थे। आपसे तो 2 दिन थाना नहीं काटा जा सकता। दिल बड़ा करें, अगर अपना जो है वो धांधली, ये मेरे सीने पर जख्म नहीं है, ये जमहूरियत के सीने पर जख्म है इमरान न्याजी साहब। और आप अभी धांधली का जख्म जो है वो मुंदबिल नहीं हुआ, आपने धौंस भी शुरू कर दी है। आप जितने मर्जी जतन कर लें, आज 40 दिनों बाद पाकिस्तानी कौम ने देखा कि जो बड़े बड़े दावे किए गए, हाँ एक काम आपने बहुत अच्छा किया कि आपने जो है ना बखूबी वज़ीर हाउस की भैंसों की नीलामी कामयाबी से की। उसकी मैं मुबारकबाद आपको देता हूँ, जिसको हिंदुस्तान के मीडिया ने दिखाया कि ये एटमी कुव्वत है, 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, लेकिन आज भूखा नंगा है और उसका वज़ीर जो है अपने हाउस की भैंसों की नीलामी कर रहा है। ये मेरी तस्लीम नहीं है, पाकिस्तानी कौम की तस्लीम है। न्याजी साहब, ये कंटेनर नहीं है, ये क्रिकेट का मैदान भी नहीं है, ना ये गेंद बल्ले का खेल है, ये सियासत है। सियासत में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जलावतनियाँ काटनी पड़ती हैं, फांसी सूली पर चढ़ना पड़ता है, जेलों में जाना पड़ता है, ऑपोजिशन बर्दाश्त करनी पड़ती है। आपसे तो तनकीद बर्दाश्त नहीं, आपने कहा कि 3 महीने दे दो, उसके बाद जो मर्जी करना कर लेंगे। देखिए मेरी बात सुने, बात बड़ी सीधी है कि हम अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं। हमने अपना जो है वो ऑपोजिशन भी देखी है, हमने माशाल्लाह अदवार भी देखे हैं, हमने जेलें भी देखी हैं। और मुझे आज कहना पड़ेगा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं नवाज शरीफ का भतीजा हूँ। मुझे फ़ख्र है कि आज मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ का बेटा, जिसने मुझे ये नहीं सिखाया कि बेटा इक़्तिदार की सीढ़ी कैसे चढ़ना, उसने मुझे सिखाया कि बेटा कफन की जेब नहीं हुआ करती है, इज्जत की दाल रोटी खा लेना, इज्जत की हिफाजत करना, वरना लोग कहेंगे देखो ये अरबों लूट कर अपना जो है वो कौम का पैसा लूट कर, वो इज्जत नहीं है। इज्जत आजी में है, ऑनेस्टी में है। और लोगों ने खुलकर वोट दिए पाकिस्तानी कौम को, नवाज शरीफ से मोहब्बत की। आज भी बात बदली नहीं है। 10 साल की दास्तान सुनाई, आज भी नवाज शरीफ को जो 119 पेशियां अपनी बेटी के साथ भुगतता है और अपनी वेंटिलेटर पर बीवी जिसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, एक एक पल वो आया, कौमी फरीजा अदा किया, जेल में गया और जज को आपको लिखना पड़ा, ऐसा अदालत के जज को, कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित नहीं। तो न्याजी साहब ये सब छोड़ दें कि शरीफ फैमिली के खिलाफ ढूंढ कर केसेस लेके आओ और अपना जो है आप अपनी नाअहली को, आप अपनी धांधली से बनी हुकूमत को इन गिरफ्तारी के पीछे नहीं छुपा सकते। ये दूध का दूध पानी का पानी होना ही है और होकर रहेगा। और मैं पाकिस्तानी कौम को सलाम पेश करता हूँ कि आज दाएं बाएं जो लोग इस खारदार रास्ते पे चलकर धांधली, बदतरीन 71 साल में ऐसी धांधली नहीं हुई, वो आज कौम ने नवाज शरीफ को वोट दिए और आज पंजाब असेंबली में, नेशनल असेंबली में हमारी अदली अक्सरियत है और हम सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, अल्लाह का करम है। आपसे ये बर्दाश्त नहीं होता। क्यों बर्दाश्त हो जब एक लूली लबली हुकूमत है, हुकूमत जो है वो हवा में मुअल्लक है। 4 वोटों से आप वज़ीर बन तो गए हैं, लेकिन अब आपको जरूरत है कि यार ये बाई इलेक्शन है, 37
टोटल सीटें इसमें 11 कौमी असम्बली की सीटें हैं। अगर ये पकड़ दकड़ ना की और अगर अपना जो है ये ऑपोजिशन ने ज़िमनी इलेक्शन का मार्का मार लिया तो मेरी हुकूमत का क्या बनेगा। तो न्याय साहब इस तरह हुकूमतें नहीं चलती, और हुकूमतें कुर्सी से नहीं जाया करती हैं। हुकूमतें जो हैं वो लोगों के दिलों में हुकूमत होती है। जिस तरह मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस मुल्क की खिदमत की है। नवाज शरीफ ने 2013 में कौम से वादा किया था कि बिजली के अंधेरों को दूर करूंगा, और पाकिस्तानी कौम गवाह है। 18 अरब के मंसूबे लगे 71 साल में 16,000 मेगावाट, और इन 5 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। और पाकिस्तानी कौम गवाह है। चीन एक उभरती हुई ताकत है, मुआशी ताकत है, दुनिया उसकी इज्जत करती है, दुनिया उसकी तरक्की को देखकर उनका दिल लग जाता है कि हम भी ऐसे हों। उन्होंने फैसला किया कि हम 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे। आज दियामिर बादशाह डैम की बड़ी बातें सुनता हूं मैं खुद गया था गिलगित बल्तिस्तान। नवाज शरीफ साहब ने एक कमेटी भेजी थी, 48,000 एकड़ अराजी, 122 अरब रुपए की हम खरीद चुके हैं नवाज शरीफ दौर में। लेकिन कौम से मैं गुजारिश आज जिसे करना चाहता हूं, 11,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई, ये छोटी बात नहीं है। बिजली के अंधेरे दूर हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना। लेकिन इमरान न्याई साहब, हमने कौम से चंदा नहीं मांगा था, चंदे से तो घर नहीं चलते। आपने 22 करोड़ लोगों को चंदे पे लगा दिया, और मैंने आपकी जवाब दे दिया। अब मैं आता हूं जरा कि मुझे जरा बताएं तो सही कि इस केस में जो नैब का केस बना है, मैं कौम से कहना चाहता हूं कि कौमी खजाने को 1 पाई का नुकसान नहीं हुआ जिसमें आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। दोबारा कहता हूं कि जिस केस में मोहम्मद शहबाज शरीफ को आप गिरफ्तार किया गया, 1 पाई का कौमी खजाने को नुकसान नहीं हुआ। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। और जहां पर मैंने आपसे नाम लिया, और आजकल बहुत ज्यादा जो है ना वो एंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, इलीगल जो चीजें बनी उसके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, और एक नोटिस बनी गाना भी रिसीव हुआ है। आप इमरान न्याई साहब, आपको तो अपना जो है ना तौफीक नहीं कि आपको नोटिस रिसीव करें, तो आपने तो कहा था कि मैं अपने घर से शुरू करूंगा। आज पंजाब कबिया में कौन बैठा हुआ सीनियर वजीर बनकर? अलीम खान, जो एक कब्जा ग्रुप की अलामत है। और मुझे कहने दीजिए, आपने कौम से कहा था कि पंजाब हुकूमत का अपना जो सरदार होगा, वज़ीर आला जो होगा, वो एक ऐसा आदमी होगा जो जिससे कौम देख के हैरान रह जाएगी। हाँ, वाकई आपने सच कहा था। आपने जिंदगी में बहुत कम सच बोला, लेकिन ये सच बोला। वो ऐसे शख्स हैं जो दियत देकर कत्ल के मुकदमे में, मैं बार बार रिपीट करूंगा, दियत देकर कत्ल के मुकदमे में जान छुड़ाकर आज वो पंजाब के वज़ीर आला बनकर बैठ गए। पाकिस्तानी कौम और पंजाब की कौम इतनी बदकिस्मत नहीं थी कि आज आपने जो है वो ऐसा चुनाव किया जिसका किरदार देखकर पाकिस्तानी कौम और पंजाब के अवाम को बिलखसूस शर्म आती। आज पंजाब का स्पीकर कौन है जिसको आपने अपना इतने अहम मनसब में बैठाया, जिन्होंने पंजाब बैंक को दोनों हाथों से लूटा? तो आज जुल्फी बुखारी कौन है? जब आपकी हुकूमत नहीं थी जाली, उस वक्त भी जब आप उम्रे पे जा रहे थे तो आपने एक फोन कॉल पे उसको ECL से उसका नाम लिखवाया और फिर जहाज में बैठा के ले गए। उसको भी नैब पे नोटिस आते हैं, किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि वो मेरा वालिद है, लेकिन चीन जैसा मुल्क कहता है कि पंजाब में तरक्की हुई, ये पंजाब स्पीड है। मुझे फख्र है कि मेरे बाप को चीन ने यह खिताब दिया। मुझे फख्र है कि आज खुदा न खास्ता नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर ये इल्जाम नहीं है कि अंडर हैंड टेबल डील की, फलां मनसूबे में, फलां ठेके में पैसे कमाए, अरबों रुपए के मनसूबे बने, बिजली घर बने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल से, और 160 अरब रुपया कौम का हमने उन मनसूबों से बचाया। ये मैं पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता। तो आज मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि न्याजी साहब, मैंने कभी नहीं देखा, ये मामले नियतों के होते हैं और फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। आपने अवाम के वोटों में तो डाका डाला, लेकिन जिस तरह का तर्ज हुकूमत हम देख रहे हैं, जिस तरह के यूटर्न हम देख रहे हैं,
یہ زندگی میں کبھی ہم نے نہیں دیکھے تھے. اور جو شوق پورا کرنا ہے کر لیں. یہ نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ کر جتنی گرفتاریاں عمل میں لانی ہے لا لیں. اس سے آپ کی اصل جو آپ کے دل میں چھپا ہوا بغض ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے. اور اچھی بات ہے, کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دکھانا چاہتا ہے کہ کنٹینر پر چڑھ کر بڑے بڑے دعوے کرنے والے, پروٹوکول کو گالیاں نکالنے والے آج بنی گالا کا سفر جو ہے اسلام آباد پی ایم ہاؤس سے ہیلی کاپٹر میں فرماتے ہیں. تو قوم نے دیکھ لیا آپ کے دعوے کتنے تھے اور آپ نے عمل کتنا کیا. وزیر ہاؤس کو لائبریری بنانا چاہتے تھے, آج اسی میں آپ مکین ہیں. اور اپنا نیازی صاحب, یہ جو اپنا آپ بات کر رہے ہیں کہ جی فلاں آپ کا وزیر یہ کہتا ہے, فلاں یہ وزیر کہتا ہے, بھائی حقائق میں آئیں, حقائق میں بات کریں. آ کے خندہ پیشانی سے قوم کے آگے اپنا پیش ہوں گے اور ہر بات کا جواب دیں گے. لیکن اپنے ارد گرد جھانکا کریں. جب آپ کابینہ کی میٹنگ لیتے ہیں, گلزار صاحب آپ بھی جھانکا کریں. اپنا جو ہے وہ آپ جب انلیگل انکروچمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہم نے قبضے کی زمینیں باگزار کرنی, آپ کے ارد گرد قبضہ مافیا بیٹھی ہوتی ہیں اور قوم دیکھتی. تو میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے فیکٹس رکھے ہیں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص پہ پلی بارگین کر کے نیب سے جان چھڑانے کا الزام ہے, جو اینٹی کرپشن کے کیس میں مفرور ہے, اس کو BRT کا ٹھیکہ دیا گیا. تو چیئرمین نیب صاحب آپ ذرا جا کے دیکھیں, 35 ارب میں یہاں پر میٹرو بس چل گئی, ملتان میں چل گئی, اپنا پنڈی میں چل گئی, لیکن آج پشاور کھنڈر ہے. ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملزم کو, اس مفرور کو پشاور میٹرو بس کا 71 ارب کا ٹھیکہ دیا, جو آج بھی کھنڈر ہے. اور آپ شوق پورا فرما لیں. اللہ کے فضل سے آج ہمارے حوصلے پست نہیں ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور مضبوط ہیں. ہم اور پاکستانی قوم سے سچ کہنے کی طاقت رکھتے ہیں, کیونکہ سانچ کو آنچ نہیں ہوتی. نیازی صاحب, جس کا دامن اللہ کے فضل سے صاف ہوتا ہے نا, وہ جیل کی سلاخیں اسے نہیں ڈرایا کرتی ہیں. اور آج پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ جب یہ پارلیمانی کمیشن جو بنے گا, اس کا پیور بنے گے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا, تو انشاءاللہ تعالی ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر نیب نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے جو ہے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو گرفتار کر اپنا جو ہے وہ جعلی مینڈیٹ عمران نیازی کو دلوانا ہے, تو اپنا شوق پورا کر لے. اس طرح حکمرانی تو ہو جاتی ہے, لیکن قوم جو ہے ایسی حکمرانی کو ٹھوکر مارتی ہے. حمزہ صاحب آئندہ کا لائی عمل کیا ہوگا؟ 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 آئندہ کا لائی عمل کیا ہوگا آپ کا مسلم لیگ نون کا؟ نمبر 2, قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کا ابھی تک کوئی بیان نہیں آیا کہ ان سے مشاورت ہوئی ہے, کیا ان کا کہنا ہے اس تمام گرفتاری کے اوپر؟ نواز شریف صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور انہیں کی ہدایت پر قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے اس کی ریگولیشن کی جا رہی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک اپوزیشن لیڈر ہیں, اس کی اپنا جو ہے گرفتاری عمل میں آئی ہے, آپ پروڈکشن آرڈر جاری کریں. پنجاب اسمبلی میں بھی ہم ریگولیشن کریں گے اور ہم اپنا جو ہے وہ قانونی اور آئینی جنگ لڑیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, دیکھیں ابھی یہ اپنا جو ہے نا وہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں کہ جعلی مینڈیٹ والوں نے یہاں پر بلدیاتی نظام کے اوپر بھی شبخون مارنے کی کوشش کی ہے. تو نہیں صاحب, ہم تو زخمی ہیں, اس قوم کا دل زخمی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے شیر کو ووٹ دیا تھا, ڈبے میں سے کچھ اور نکلا. تو ہم تو دل پہ پتھر رکھ کر اس نظام کی خاطر, اس ملک کی خاطر ایوانوں میں بیٹھے ہیں. اگر آپ نے یہی روش روا رکھی تو پھر انشاءاللہ تعالی ایوانوں میں بھی جنگ لڑیں گے, سڑکوں پہ بھی جنگ لڑیں گے. یار ون بائی ون کرو نا یار. کے بارے میں بھی کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے تحریری طور پر لکھ کر دیا ہے کہ انہوں نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں انہیں اس وقت کے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کے کہنے پر اٹھائے ہیں. دیکھیں میں اس طرح کہوں گا کہ ایک آدمی جو کسٹڈی میں ہے اس کو اپنا جو ہے وہ نیب کے ڈائریکٹ کسٹڈی میں ہے, اس کے بیان کے اوپر اپنا جو ہے کسی کو
गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जहां पर सुप्रीम कोर्ट बाबर ऐवान जिसने करोड़ों का गबन किया साबित हो गया, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उसके खिलाफ इंक्वायरी करो, कोई नहीं पूछता। जुल्फी बुखारी को कोई नहीं पूछता, अलीम खान को कोई नहीं पूछता। तो ये न्यायाधीश साहब, ये खेल तमाशा चलना नहीं। गिरफ्तार हुई थी तो वो कह रहे थे कि खिलाई मखलूक उनके पीछे है, तो आज के आपके वालिद की गिरफ्तारी के पीछे क्या खिलाई मखलूक पीछे है? ये कहने को तो एक जमहूरी हुकूमत है, और मेरा ख्याल वही कंटेनर कल्चर चल रहा है। इमरान नियाज़ी साहब कहते थे ना कि मैं उसको टांग दूंगा, उसको जेल भेज दूंगा। मुझे ये बताएं कि फवाद चौधरी ने आज कहा है कि अभी और गिरफ्तारियां हो रही है, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, तो उनको ख्वाब आया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अपना ना न्याय के पीछे छुप सकते हैं, ना गिरफ्तारी के पीछे छुप सकते हैं। इनको जो इलेक्शन चुराया है इमरान नियाज़ी को, इलेक्शन कमीशन को, इनको कौम को हिसाब देना। हमजा साहब ये बताएं, हमजा साहब ये बताएं कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब पे भी आपको पता है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर रिहा किया गया। आप शहबाज शरीफ साहब, इस सारी बारी बारी में ये कौम को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि नून लीग को एक साइड पे करके, और असल मकासद क्या है, असल जो मसला है वो किससे चाह रहे हैं? कि ज़िमनी इलेक्शन है, 4 वोटों से मैं वज़ीर बना हूँ, अगर ये 11 सीटें धौंस धांधली से गिरफ्तारियों से पीटीआई को मिल जाए तो मेरी हुकूमत बच जाएगी। हुकूमतें ऐसे बचा नहीं करती। सवाल ये है भाई बंद करो ना यार। सवाल ये है कि आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था, जब बयानिया जो था नवाज शरीफ का अरूज पर था, और आपने कहा था कि ताया जी को समझाएंगे कि इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी सही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब यहीं बैठकर उन्हें जब हमने पूछा खलाई मखलूक इदारों से टकराव, वो उन्होंने नाम नहीं लिया। क्या अब आप समझते हैं कि आपकी वो पॉलिसी सही नहीं थी और नवाज शरीफ का बयानिया दुरुस्त था? नवाज शरीफ हमारा लीडर है, और कौम नवाज शरीफ को वोट देती है। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। नवाज शरीफ ने अपने दौर में 50 अरब डॉलर की चीन से सरमायाकारी की, और ये सब यहाँ पर जो बैठे हैं नवाज शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह वोट बैंक से यहाँ पर आज मेंबर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली बनकर बैठे हैं। पार्टी की मुशावरत होती है, पार्टी में बात होती है, और जो पार्टी फैसला करती है उसको आगे 13 जुलाई का नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था, जो लाहौर की सड़कों पे हमने देखा, क्या आप अपने वालिद की गिरफ्तारी और पीएमएल के मरकजी रहनुमा प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के बाद क्या अब आप मियां नवाज शरीफ के बयानिए की जानिब जाएंगे? मैं कह चुका कि नवाज शरीफ हमारे पाकिस्तानी कौम ने उनको लीडर तस्लीम किया है, लेकिन इमरान नियाज़ी साहब, हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये अपना धांधली जो है ये आपको हजम नहीं होगी, और आज जिस शख्स ने दिन रात ईमानदारी के साथ इस सूबे की खिदमत की, उसकी गिरफ्तारी भी हम आपको हजम नहीं होने देंगे। आपकी हुकूमत रही है, आपने कहा अब्दुल अलीम खान कब्जा माफिया है, तो उसके खिलाफ आप लोगों ने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों दी गई? हम अपना जो है ना, आपने बात की, बड़ी अच्छी बात है। हम इमरान नियाज़ी साहब की तरह अपना जो है ना वो नैब पर असरअंदाज नहीं होते। आज भी मुशर्रफ दौर के केसेस अलीम खान के खिलाफ जो है वो आज कोर्ट्स में चल रहे हैं। आज अपना जो है वो जहांगीर तरीन को आपने देखा है, तो हम तो अपना जो है किसी के खिलाफ जो है वो अपना इंतशार या बहुत नहीं रखते, जिसका न्यायाधीश साहब ने नमूना पेश किया है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम की दुआएं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ हैं, और इंशाअल्लाह इस जाली मैंडेट का डट इस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ जो आपके तायाबू हैं और साबिक वज़ीर आला पंजाब जो आपके वालिद मोहतरम हैं, शरीफ बरादरान के बारे में जो कोई ये कह रहा है ये चोर है, डाकू है, जेलों के अंदर जाएंगे, क्या आप आज कसम खाते हैं अपने बाप की, अपने ताया की, क्या आपने चोरी नहीं की, डाका नहीं डाला, और आपके खिलाफ मखसूस कैंपेन चल रही है ताकि ज़िमनी इलेक्शन क्या जनरल इलेक्शन भी उनको जिताए जाए जिनको चाहते हैं? अमीन अभी साहब जो सच्चे होते हैं ना वो कसमें नहीं खाते,
वो पाकिस्तानी कौम को गवाह बना के कहते हैं कि यार अपना जो है ना, अगर एक दमड़ी की करप्शन साबित हो गई तो मैं अपना जो है ना कौम का देवदार। और दूसरी बात सुन रहा हूँ, अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ख्वाजा साद रफीक साहब और उनके भाई का नाम ईसीएल पर डाल दिया गया है। वो जो इमरान नियाजी ने सीट छोड़ी थी वहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन लड़े, तो ये नहीं, मेरी बात सुनिए आप भाई साहब, आप मेरी बात सुने। ये देखें ना, अपना चंद दिन ज़िमनी इलेक्शन में रह गए हैं और आज अपोजिशन लीडर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस शख्स ने जिसने पंजाब की खून पसीना देकर ईमानदारी से खिदमत की, ख्वाजा साद रफीक जो ज़िमनी इलेक्शन लड़े, आज का दिन ही क्यों चुना कि ईसीएल पे डाल दिया जाए। और खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है नियाजी साहब के अपने पास है, तो ये तो मेरा ख्याल है कि खुद ही इन्होंने बंदोबस्त कर दिया है कि कौम के सामने सच आए। मैं लौटता हूँ, आपके मैंने सवाल लिया, मैं लौटता हूँ अपनी पहली बात पर कि मैं नैब से फिर कहूँगा कि पूछें उन लोगों से जिन्होंने जिसको ठेका कैंसिल करने की वजह से आज शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया है। पूछें उन लोगों से जिन्होंने एक मफरूर को एक प्ली बार गेंद देकर नैब से जान छुड़ाने वाले को आज बीआरटी का ठेका दिया। शहबाज शरीफ को चाइना रोज एक बयान शहबाज शरीफ को चाइना मैन भी नाम से कहते हैं। पंजाब स्पीड जो है शहबाज शरीफ को कहते हैं। इंटरनेशनली उनकी गिरफ्तारी के बाद क्या असर पड़ेगा सियासत पे? मैं समझता हूँ कि ये तमाशा धांधली का इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देख रही है। जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं धांधली के बारे में, इस हुकूमत की नाअहली के बारे में, जुमा 8 दिन हुआ है, घोड़ा भी यहाँ पे है, मैदान भी यहाँ पे है और इमरान नियाज़ी साहब मैं भी यहाँ पे हूँ। अल्लाह के फजल से आपने जिसको गिरफ्तार करना है करें, लेकिन मैंने आपको कहा है इमरान नियाज़ी साहब, आपकी नाअहली 40 दिनों की और धांधली से बनी हुई है जाली मैंडेट, जब तक इसको बेनकाब नहीं कर देंगे हम चैन से